recording. Okay, so let me revise first of all, as we are meeting after 2-3 days, and then we'll proceed further. So while discussing about the shortcut method, we have studied few methods like this. Number one, where your differential equation phi of d operated on y is equal to f of x represents very specific type of functions on right hand side. So f of x might be of the type e raised to power ax. So its variation we have seen. Second case we have seen f of x might be either sine or cos of ax plus b. Then third, f of x is equal to sine or cos hyperbolic of ax plus b. For B1 and B2 batch, this particular case I have not elaborated in tutorial session. For B3 and B4 batch, it's over. So I'll come back to this particular part for B1 and B2 once again. Then f of x is equal to polynomial function. Next is f of x is equal to e raised to power ax into any further function. And sixth, which we are going to study, is this one, f of x is equal to x into v, where v is any function of x. Like over here, we have considered any function of x. In similar way, sixth case में भी हम same करने वाले. Alright? Okay, now let us try to understand the formula. इसका proof बहुत extensive है, so proof I am not going to tell you over here. So over here, yp, that is particular integral, can be written as 1 upon phi of d operated on x times v, that is x into v, and the yp can be evaluated with the help of this right hand side formula here we noted. So how that formula goes? In square bracket x minus phi dash of d, जो भी आपका phi of d है इसका first derivative phi dash of d upon phi of d, then into 1 upon phi of d. Now you can easily check out this entire curly bracket with pink color is nothing but an operator, क्योंकि मैंने 1 upon phi of d से अंदर भी मल्टीप्लाई किया तो x times 1 upon phi of d minus phi dash of d upon phi of d का square operated on v ऐसे है. So this entire operator in curly bracket, pink curly bracket, will be operated on v, and ये operation मुझे step by step अच्छे से करना है. Solve this using previous cases which we studied under the shortcut method. तो not required in some of the problems हम यहाँ पर shortcut method या general method का combination भी कर सकते हैं. Not like that कि हमें shortcut method ही use करनी है, but the problem goes like this. तो ये problem मैं आपको journal पर करके दिखाती हूँ. This is d2y by dx square plus 4y is equal to x sin x. So today's first problem, this is 25/10/2021. We are studying case 6. तो better way मैं यहाँ पर case 6 फिर से लिखती हूँ so that you will understand. yp, which is 1 upon phi of d operated on x times v, can be written as, yes, any doubts to anyone? 1 x minus phi dash of d upon phi of d, then 1 upon phi of d in multiplication, and this entire operator will be operated on v. So ये हमारा formula है. So let us discuss this case with one problem. क्या था वो problem? d2y by dx square plus 4y is equal to x into sine of x. Let us check out the answer here. yc, कोई immediately बता सकते हैं what is yc here? Anyone? Okay, phi of d is equal to 0. ये auxiliary equation बताओ यहाँ पर. मैम d square plus 4.
d square plus 4 is equal to 0, right? So d is equal to plus minus 2i. 2i. And y is equal to c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x. Very true. Okay. And now let us find out yp. 1 upon 5 of d operated on x times v. So ये है आपका 1 upon d square plus 4 operated on x into sin x. Now you can easily observe here that sin x is nothing but your v. Okay. So formula representation goes like this. In square bracket x, which is this term, minus phi dash of d upon phi of d into 1 upon phi of d operated on your v. तो यहाँ पर phi of d and v की वैल्यूज लिख के मैं फॉर्मूला रीराइट कर देती हूँ. सो दिस इज x माइनस phi dash of d. क्या है हमारा phi dash of d? दिस इज लेट मी राइट डाउन हियर. दिस इज d स्क्वायर प्लस 4. ये हमारा phi dash of d है, राइट? सो इसका डेरिवेटिव 2d, 4 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज इनटू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज ऑपरेटेड ऑन v. v है क्या है आपका साइन ऑफ x. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेप्स हियर. हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, एग्जैक्टली फॉर्मूला में जो है वही लिखा है हमने. अब प्रोसीड कैसे करना है. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, ये एंटायर फॉर्मूला जो है ना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल अप्लाई दिस and secondly we'll apply with this bracket. So let us check out the things. This is x minus 2d upon d square plus 4. I'll keep aside. First of all, I'm going to apply 1 upon d square plus 4 sin x. Now this particular bracket is exactly same as case 2, right? तो केस 2 हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है. नाउ वाइल problems will be given in the exam will not be case specific. It might be the combination of cases. So try to understand कि हम हर एक प्रॉब्लम में डिफरेंट केसेस कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. नाउ ओवर हियर अब केस 2 क्या है? 1 upon 5 of d ऑपरेटेड ऑन सर्टन फंक्शन जो कि साइन x है यहाँ पर. सो व्हाट आई हैव टू आइडेंटिफाई हियर इज द वैल्यू ऑफ x. Value of a, sorry, value of a. What is it? Is it 1? Right? तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? 1 upon d स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, राइट? प्लस 4 एज इट इज ऑपरेटेड ऑन साइन x. तो मैंने सिंपली मेरा फॉर्मूला केस 2 का यहाँ पर अप्लाई कर दिया. नाउ आई कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर, राइट? इट्स माइनस 1 प्लस 4. तो यहाँ पर 3 आ रहा है एंड दिस इज नॉट अ केस ऑफ फेल्यूर. ये केस ऑफ फेल्यूर नहीं है, तो मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2d अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 operated on 1 upon 3 sin x. लेकिन किसी भी ऑपरेटर को अगर कांस्टेंट पर ऑपरेटर करना है और वो कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, तो हम उस कांस्टेंट को प्रोडक्ट के बाहर ले सकते हैं. सो दिस इज 1 upon 3 into x minus 2d upon d square plus 4 operated on sin x. तो हमने ये वाला पार्ट जो है ये सॉल्व कर लिया पूरा. अब इसका जो सॉल्यूशन है ना, उस पर हम इस वाले ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहे हैं. तो लेट अस मूव दैट. यहाँ पर नाउ दिस इज 1 upon 3 एज इट इज. अब इस ब्रैकेट की हर एक टर्म से हम sin x पर ऑपरेट करते हैं. नाउ इन फर्स्ट टर्म आई जस्ट हैव x, नो ऑपरेटर, सो आई कैन राइट डाउन दिस एट x into sin x minus in second term I am having this is 2 into d upon d square plus 4 operated on sin x. Now here you are having two options, either operate
with this numerator d first and then the denominator, or operate with the denominator then with the numerator. Your answer must be same. So किसके साथ जाना है हमको? मैम फर्स्ट न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर. Okay, चलेगा. So this is x into sin x minus 2 upon d square plus 4. I'll keep aside. Now this is d of sin x. What is d of sin x? Cos x. It's derivative, right? So this is cos x. X into sin x minus 2 upon d square plus 4, and this is cos x. Now this particular term is cos x, and rest of operator I have to operate now on cos x. So this is 1 upon d square plus 4 operator on cos x. 1 upon 3 x sin x. Ma'am, we can replace this d raised to d square with minus a square. Correct. तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. This is 1 upon minus d square is minus of 1 square, that is 1, plus 4 as it is operated on cos of x. So my final answer is 1 upon 3 x into sin x minus 2 upon 3 into cos x. So that's our answer. Right? Understood everyone? Problems are very easy. Just combination of cases we have to do. मैं यहाँ पर फिर से एक चीज लिखती हूँ कि यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? केस 2 अप्लाई कर रहे हैं फिर से. इनिशियली हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखते वक्त अप्लाई की है केस 6. देन केस 2 अप्लाई 2 बार की है, एंड वी रीच टू द फाइनल आंसर ऑफ आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देयरफॉर योर एंटायर आंसर कैन बी रिटन एज yc plus yp is equal to c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x plus 1 by 3 into x sin x minus 2 into cos of x by 3. So this is our final answer. Remember one part, while explaining you now each and every step, small steps also I have included here. But जैसे आपको ये practice हो जाती है, few of the steps you can skip by just giving the reason for the same. जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रिप्लेस करते वक्त ये steps लिखी है, right? तो ये स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली नोट डाउन डी स्क्वायर एज माइनस ऑफ 1, एंड यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप्स एज इट इज. दैट पार्ट इज क्लियर? लेट अस चेक आउट कि हमारा आंसर हमने पीपीटी में भी सही लिखा है या नहीं. यस, इट्स 1 by 3 x sin x minus 2 upon 3 cos of x. Got the method everyone? Yes ma'am. Okay. Now I'll take a problem from PPT itself. वैसे मैं अवॉइड कर रही थी पीपीटी के प्रॉब्लम्स लेना, बट B1 एंड B2 बैच को मैंने cos हाइपरबोलिक ऑफ x का प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला. इफ आई एम हैविंग 1 upon 5 of d ऑपरेटेड ऑन साइन और cos हाइपरबोलिक ऑफ ax plus b टाइप फंक्शन, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 1 upon 5 of d स्क्वायर की टर्म को आइडेंटिफाई करना है और उसे रिप्लेस करना है a स्क्वायर से. तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में हम किससे रिप्लेस कर रहे थे? माइनस ऑफ ए स्क्वायर से. हाइपरबोलिक में किससे रिप्लेस करना है? माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है. एंड द रेस्ट ऑफ रूल्स आर सेम. अगर ये केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो ऊपर x लिखो, नीचे का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, एंड प्रोसीड इन सिमिलर वे जैसे हम साइन एंड कॉस के लिए करते हैं, वैसे ही साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक के लिए भी करना है. सो दैट्स नथिंग बट योर केस 3. तो केस 3 का यूज हमें यहाँ पर करना होगा, बिकॉज हियर वी आर हैविंग हाइपरबोलिक फंक्शन. तो ये वाला प्रॉब्लम मैं लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. सो दिस इज अवर सेकंड प्रॉब्लम ऑन केस 6. प्रॉब्लम इज d2y by dx square minus 4y ही था ना, इज इक्वल टू x इंटू कॉस, और साइन भी ले सकते हो आप यहाँ पर. वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स विल गेट फॉर्म. यस, नाउ yc. Can anybody quickly tell me what is yc? See, अब प्रॉब्लम को देखते ही ना आपको yc समझ में आना चाहिए. मैम c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to 2x. Yes, c2 e raised to power minus 2x, ये है आपका yc. yp क्या होगा फिर? 1 upon 5 of d operated on x into cos hyperbolic of x.
I repeat, it's not cos hx. This is cos hyperbolic of x. So ये है आपका yp. लेकिन ये तो x इंटू वी टाइप वाली टर्म है, तो यहाँ पर पहले अप्लाई करेंगे केस 6. वैसी रॉन्ग है सर, क्या? वैसी में दोनों तो सेम आएंगे ना, 2. नहीं, बताती हूँ ना मैं. दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और डी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2. यस मैम. तो इसलिए एक प्लस एक माइनस ऐसे आ जाएगा. समझ गया? यस मैम. ओके. सो मूविंग नेक्स्ट. तो ये हमें केस 6 से रिप्रेजेंट करना होगा. लेट अस रिप्रेजेंट दैट x माइनस 5 डैश ऑफ d. तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लिख दूँ. दिस इज 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 आपका 1/5 ऑफ डी एज इट इज. किस पर ऑपरेट कर रहे हैं? cos hyperbolic of x पर ऑपरेट कर रहे हैं. नाउ v1 एंड v2 बैक. प्लीज केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. अब इस पार्ट को हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है केस 3 से, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है. सो लेट अस मूव दैट फर्दर. x माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 साइड में रखते हैं थोड़ा सा. इसे ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट कैसे करना है? 1 अपॉन इस डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है ए स्क्वायर से. ए की वैल्यू क्या है? 1. a इज इक्वल टू 1 हियर. करेक्ट. सो यहाँ पर हमें ऐसे मिलेगा x माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 4 मीन्स इट इज माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x एज इट इज. तो ये 1 अपॉन माइनस 3 जो है ना, वो हम ऑपरेटर के पूरे ऑपरेटर के बाहर लेते हैं. एंड नाउ विल ऑपरेट विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑन दिस कॉस हाइपरबोलिक. सो दिस इज x cos hyperbolic of x minus 2 upon d square minus 4. न्यूमरेटर में और एक d है, ऑपरेटेड ऑन cos hyperbolic of x. अब पहली टर्म को तो कुछ नहीं करना है, दिस इज प्लेन एंड विदाउट एनी ऑपरेटर. दूसरी टर्म को केयरफुली सिंप्लीफाई करना है. अब यहाँ पर 2 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 मैंने एज इट इज रखा. ऊपर वाले d से मैं cos hyperbolic of x को ऑपरेट कर रही हूँ. Now ऊपर वाला d, यस दिस इज sin hyperbolic. ऊपर वाला d मीन्स क्या? डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic क्या है? प्लेन sin hyperbolic. ये भी याद रखना b1 एंड b2. प्री रिक्विजिट्स के हम डिस्कशन जब कर रहे थे ना, तो इन फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखे हैं वहां पर. डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic of x इज इक्वल टू sin hyperbolic of x. No inclusion of any negative sign in hyperbolic sin and cos derivative. तो याद रखना बहुत सिंपल है. sin hyperbolic का डेरिवेटिव cos hyperbolic का डेरिवेटिव sin hyperbolic. माइनस साइन का है ही नहीं कुछ यहाँ पर इंक्लूजन. ठीक है. सो दिस इज माइनस 1/3 इंटू x cos hyperbolic of x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज. अब ये जो है ना बच्ची टर्म फिर से केस 2 की तरह हो जाएगी, केस 3 की तरह हो जाएगी. So replace your d square by a square. A square is minus 1 का square minus 4 and this is sin hyperbolic of x. ठीक है. ये केस 3 ना अच्छे से पीपीटी में इंक्लूड है. दो हमने थोड़ा सा आगे पीछे ली है, बट सिक्वेंशियली इट इज रिप्रेजेंटेड इन दैट पीपीटी. सो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा पीपीटी को रेफर करके प्रिपेयर करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मूव हो रहा है. सो दिस इज 2/3 sin hyperbolic of x. राइट. तो ये हो गया हमारा आंसर. लेट अस चेक आउट कि आंसर सही है या नहीं. -1/3 बाहर निकाला है. x cos hyperbolic of x plus 2/3 sin hyperbolic of x. So that's our answer, yp, and hence your y complete solution y can be written as y sec plus yp is equal to c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 2x minus 1/3 into x cos hyperbolic of x plus 2/3 sin hyperbolic of x.
ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे केस 6। तो इन ऑल हमने 6 केसेस यहाँ पर शॉर्टकट मेथड की कंप्लीट कर ली है। ओके, so let us move further. Now there are some miscellaneous problems in our PPT. ये प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क के लिए देख के रखा था शायद, नहीं शॉर्टकट मेथड पर हमने होमवर्क ही नहीं लिया ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। See here, in this problem ना you are having combination of cases. cos की टर्म है मीन्स कौन सी केस आएगी, केस 2। x की टर्म है मीन्स कौन सी केस आएगी, केस 4, जहां पर पॉलिनोमियल टर्म ये इंक्लूड हो रही है। ये कांस्टेंट है मीन्स केस 1 की सब केस, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है मीन्स ये केस 1। तो 1 2 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पर डिस्कस हो रही है, राइट। तो ये इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन देके रखा है, गो थ्रू दैट। यहाँ पर केस 1 अप्लाई हो रही है, इस ब्रैकेट को खोल दो, यू विल गेट 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x ट्वाइस ऑफ ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर 2x। सारे टर्म्स में केस 1 ही अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल टर्म पहले दी है, x की पावर की टर्म पहले दी है, राइट। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि कोई अलग केस अप्लाई हो सकती है क्या, बट एज दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म इन द प्रोडक्ट, प्रिफरेबली अप्लाई केस 5 हियर। केस 5 क्या है, ई रेज़ टू पावर ax इंटू वी। अप्लाई कैसे करते हैं, अगर मुझे इसका yp निकालना है तो ई रेज़ टू पावर ax को बाहर ले लो एंड फाई ऑफ डी को चेंज कर दो बाय रिप्लेसिंग d प्लस a, एंड उस चेंज्ड फाई ऑफ डी के साथ v पर ऑपरेट करो। सो ये है आपकी केस 5। इस पर शायद हमने उस दिन एक ही प्रॉब्लम लिया था, ठीक है। देन यहाँ पर नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यह प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको हिंट याद नहीं आ रही है तो शायद डिफिकल्ट लग सकता है, राइट। ओके, दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके दो फैक्टर्स क्या पड़ेंगे, डी स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज डी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, डी माइनस 1 डी प्लस 1, और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, दी प्लस आई डी माइनस आई। तो मैंने ये फाई ऑफ डी के लिए आपको फैक्टर्स बताए। अब राइट हैंड साइड का फंक्शन प्रोडक्ट के केस पैटर्न में है, यहाँ पर क्या करेंगे। सी इन अर्लियर लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रोडक्ट, cos of a into cos of b, sin of a into sin of b, then cos of a into sin of b। इन तीनों के लिए हमने फॉर्मूला देखा, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक हाइपरबोलिक फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो क्या करना है। आई गेस B3 एंड B4 के लिए हमने ये प्रॉब्लम देखा था। cos x, हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यूज करनी है, यूज द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो प्लीज रिविजिट दैट PPT विच आई अपलोडेड ऑफ प्रीरिक्विजिट्स। वहां पर cos हाइपरबोलिक की, sin हाइपरबोलिक की डेफिनेशन, उनके डेरिवेटिव्स, उनके इंटीग्रेशंस मैंने दे के रखे हैं। cos of x, cos हाइपरबोलिक ऑफ x, इसकी डेफिनेशन है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये जो टर्म है cos x एंड cos हाइपरबोलिक ऑफ x का प्रोडक्ट, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ आई कैन राइट डाउन दिस एज e रेज़ टू पावर x इंटू cos of x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू cos of x। Now this particular problem converted to case 5, right? And आप easily solve कर सकते हो। तो ये पूरा प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। Coming to next, ये प्रॉब्लम अगेन केस 5 की तरह है, लेकिन केस 5 अप्लाई करने के बाद आपको इस पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट वे में। तो इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ ऐसे, एंड फर्दर वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। नाउ कम विद दिस प्रॉब्लम। 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के लिए हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं लिया था। सो ये और इस टाइप का प्रॉब्लम भी हमारे इस पूरे सेक्शन में शॉर्टकट मेथड के इम्पोर्टेंट है।
तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर फाई ऑफ डी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया, मेरा प्रॉब्लम अलग हो रहा है, राइट। हल्का सा भी प्लस माइनस का भी चेंज कर दिया तो मेरा प्रॉब्लम डिफरेंट है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इफ यू आर नोइंग द टेक्निक्स करेक्टली, प्रॉब्लम्स कुछ भी आने तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Yes, ma'am. Okay, now collectively we are solving the problem over here. So ये third problem है and this is d2 plus 2d plus 1 operated on y is equal to x into e raised to power minus x into cos of x. So yc find out करो पहले। क्वाड्रेटिक टर्म है तो yc find out करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। yc आता है इसका, anybody? Okay, what is auxiliary equation? Revisit that. अगर आप Ma'am, -1. C1x plus C2 into the power minus yes, y7. Ma'am, C1x. Yes, ma'am, correct. correct? Yes. Okay, 5 of d नहीं, यहाँ पर d की वैल्यूज हमें मिलती है रिपीटेड। So d is equal to plus minus, sorry, -1 2 times. Yes. So yp is 1 upon 5 of d x into e raised to power minus x into cos of x. Am I correct? Okay. Now what to do? अब तीन टर्म्स प्रोडक्ट में है। मैं यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकती हूँ। ये टर्म है x इंटू वी के फॉर्म में, या ये टर्म है e रेज़ टू पावर ax इंटू वी के फॉर्म में। तो दोनों भी वैसे हम जा सकते, बेटर होगा मैम, सॉरी बेटर होगा। सेकंड वाला बेटर रहेगा, करेक्ट। सो ह्या केसमध्ये आय हॅव टू ऑपरेट वन्स अगेन केस 5 टू डिफरंट टाइम्स। सो इंस्टेड ऑफ दैट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। So which method we should go for? Case 5. So it's 1 upon 5 of d means d square plus 2d plus 1 operated on x into e raised to power minus x into cos of x. So let us apply that. E raised to power minus x को बाहर लेना है simultaneously while taking it outside, क्योंकि ये particular term आपके ऑपरेटर के अंडर है। तो इसे बाहर लेना मीन्स हमें ऑपरेटर से ऑपरेट करना होगा या फिर ऑपरेटर में चेंज करना होगा। सो द चेंज इन ऑपरेटर गोज लाइक दिस, दिस इज डी प्लस ए की वैल्यू क्या है -1, सो प्लस माइनस ऑफ 1 इज -1, सो ये हो जाता है यहाँ पर d -1 का स्क्वायर प्लस 2d, ये चेंज हो जाएगा 2d -1 पर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन x इंटू कॉस ऑफ x नाउ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब इस ऑपरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर -2, तो ये -2 प्लस, हाँ मैम अगर हम पॉलिनोमियल को d+1 द होल स्क्वायर लिखेंगे ना मैम, तो बस सिंपलीफाई होके बस d² बच जाएगा मैम सिंपलीफाई करने पे। यस बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल वही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोल के आपको बताया है। दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, 1 + 1 -2, दिस इज ऑल्सो 0, right? And I will left out only d square which is being operated on x cos x now. Now this is e raised to power minus x, and 1 upon d square means 1 upon d square means what? Double integration. It's a double integration of x cos x, right? So take the integration 2 times and let me know the yp. So e raised to power minus x as it is. फर्स्ट इंटीग्रेशन में इनर इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, x cos का इंटीग्रेशन है sin माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, cos का इंटीग्रेशन sin और sin का और एक बार इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा माइनस cos, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस cos इंटू dx, और एक बार इंटीग्रेशन लेना है इस टर्म का e raised to power minus x इंटू x sin x का इंटीग्रेशन
x कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंड कॉस का और एक बार इंटीग्रेशन साइन, लेकिन माइनस की वजह से मिडिल साइन प्लस आ जाता है, साइन, एंड प्लस कॉस का और एक बार इंटीग्रेशन साइन, इस कॉस का इंटीग्रेशन. सो दैट्स इट. e raised to power minus x into minus x cos x plus twice of sin x. तो आपका पूरा yc जो है वो है ऐसे c1 e raised to power minus x plus c2 x into e raised to power minus x plus e raised to power minus x cos x plus 2 sin x, and that's our final answer. मैम हाँ. मैम मैं डबल इंटीग्रल अवॉइड कर सकते थे ना मैम, हम डबल इंटीग्रल अवॉइड कर सकते थे ना मैम, अगर हमने वो x into वाला डेफिनेशन यूज किया होता. कौन सा? वो भी K6 सेम ही अमाउंट ऑफ स्टेप्स में आंसर देता है मैम. मैम K6 यूज किया होता तो अच्छा ये वाला, ओके ओके, नो इश्यूज. मैंने बोला भी था कि ये आपको ये और ये दोनों भी मेथड से जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. तो आप कह रहे हो कि इस केस में 6 की वजह से आपको इमीडिएट आंसर मिलता है शॉर्ट स्टेप्स में. डबल Isn't it इंटीग्रेशन सेम अवॉइड नंबर हो ऑफ रहा है. स्टेप्स लगते हैं मैम, क्योंकि मैंने हाँ. इसके से किया था मैम. ओके ओके, इसमें कोई कितने स्टेप आंसर मिलते हैं? आंसर सेम है ना, लेकिन आंसर इज दिस वन. हाँ, देन इट्स फाइन. आप किस कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल. सिर्फ आपको केयरफुली क्या देखना है कि केस ऑफ फेल्योर जहां जहां पर आ रही है वहां पर आप प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहे हो उससे, दैट्स इट. तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, नॉट अ कंपल्सन एट ऑल. इनफैक्ट हम जो ये शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हो तो वो भी पॉसिबल है एंड आप लिख सकते हो. सो दीज आर नॉट द स्ट्रिंजेंट कंपार्टमेंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. हाँ, अगर हमें क्विकली सॉल्व करना है तो गाइडलाइंस हो सकती है कहाँ पर, जैसे आप बता रहे हो, राइट? तो दिस कैन बी पॉसिबल. So with this problem, I'm going to conclude the section of shortcut method. तो यहाँ पर और कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो सारे प्रॉब्लम्स आप करके देखो. इन जनरल एक 8-10 प्रॉब्लम्स आंसर्स के साथ मैं आपको रिपोस्ट करती हूँ एज अ होमवर्क जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है? ओके. Then method 3 we are going to study here further, which is the method of variation of parameter. Let me know one thing. आपका आज इंडक्शन का कुछ लेक्चर हुआ ना? फर्स्ट लेक्चर वाज इंडक्शन लेक्चर, राइट? Yes, 9th में. तो कल भी है ना ये? मैम तो उधर कल नहीं है मैम, परसों है. कल नहीं है क्या लेक्चर नहीं मैम, इंडक्शन? कल भी है, कल भी है. मैम अल्टरनेटिव होता है मैम, अल्टरनेटिव होता है. ओके ओके, लेट अस सी. मुझे लगा ये सारे दिन है क्योंकि शेड्यूल उस टाइप का आया था. तो अगर कल भी है इंडक्शन का लेक्चर तो शायद कल का हमारा मॉर्निंग का लेक्चर है 9:30 to 10:25. तो वो शायद किसी और दिन इन्होंने एंगेज किया होगा. सो टुमारो वी कैन नॉट एंगेज दैट लेक्चर अगर ऐसा है तो. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टुडे इटसेल्फ, एंड इसकी जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है वो हम आज और कल के ट्यूब सेशन में करते हैं. सो द एंटायर थ्योरी पार्ट of this particular unit will get over, all right? And PPT में इससे ज़्यादा कंटेंट है, तो वो कंटेंट हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर फर्दर अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू. तो मैंने जो शुरू में ये बताया था कि हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला है. अनदर specification for the linear differential equation is it can have a variable coefficient too, like x square d2 plus xd plus 1 operated on y is equal to e raised to power ax. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का अब तक पढ़ा ही नहीं है LD में, बट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन कन्वर्टेड टू LD. ये LD नहीं है लेकिन LD पर कन्वर्ट हो सकता है. ओके, तो ये वाला पार्ट आगे के स्लाइड्स में इंक्लूडेड है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप क्यूरियस हो तो आप पढ़ सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डील विद दिस एंटायर PPT टिल 19th PPT स्लाइड.
वहां तक हमारा सिलेबस है, आगे का सिलेबस में नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, लेट अस कम टू द थर्ड टाइप. तो हमने फर्स्ट टाइप देखी जनरल मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड, एंड तीसरी है एमओवीपी, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. द स्पेसिफाइड टाइप है ये, हम सिर्फ ये अप्लाई कर रहे हैं एलडी ऑफ ऑर्डर 2 के लिए, जो मैं मेथड बता रही हूँ. जबकि एक डिफरेंट मेथड है जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंडर ही हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट कैन बी अप्लाइड टू द एलडी ऑफ ऑर्डर 3, 4 एंड 5. बट द कैलकुलेशंस इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट आर मच एक्सटेंसिव. बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने हैं वहाँ पर. डेरिवेटिव लेना है, फिर इंटीग्रेशन लेना है, कुछ एक अननोन फंक्शन लेना है, उसे प्रिटेंड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो पर्टिकुलर मेथड हम यहाँ पर नहीं सीख रहे. वी आर जस्ट गोइंग टू सी द स्पेसिफिक केस ऑफ एलडी फॉर ऑर्डर 2. एंड ये केस हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों भी टाइप के एलडी को अप्लाई होती है. अब ये दो टाइप के एलडी जो है वो क्या होंगे ये मैं बताती हूँ. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलडी ऑफ ऑर्डर 2. ये मेंशन्ड है. आपका जो एलडी है ऑर्डर 2 का वो इस स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट हो सकता है वेयर एबीसी आर द कॉन्स्टेंट्स. एबीसी जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, राइट. स्टेप्स क्या फॉलो करनी है? स्टेप नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. वाई से फाइंड आउट करना है. सो ये होगा C1 इंटू Y1, कोई भी फंक्शन ऑफ x जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप से आएगा. C2 cos of 2x. फॉर एग्जाम्पल d square minus 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू से tan of x. तो यहाँ पर yc क्या आएगा आपका? C1 e raised to power x प्लस C2 e raised to power minus x. तो ये है आपका y1 एंड ये है आपका y2. जो भी आएगा वो एक y1 है, पहला y1 है, दूसरा y2 है. सो ये है आपका yc स्टैंडर्ड वे में. पुट डाउन दिस एज इक्वेशन 1. अब हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है वो इस पैटर्न में आता है. C1 को रिप्लेस कर रहे हैं हम u से. u आपका x का फंक्शन है. y1 इज डिटरमिन्ड फंक्शन बाय दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन प्लस v. C2 को रिप्लेस कर रहे हैं v से. v भी आपका x का फंक्शन है एंड y2 एज इट इज. सो इसे हम मान रहे हैं कि ये हमारा yp आ रहा है. ओके, सो यहाँ पर u एंड v जो है वो कैसे निकालेंगे? u कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस y2. u को निकालने के लिए y2 का यूज कर रहे हैं, v को निकालने के लिए y1 का यूज कर रहे हैं. माइनस y2 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन w इंटू dx एंड v को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एंड दीज आर द स्पेसिफाइड फॉर्मूले जस्ट फॉर एलडी ऑफ ऑर्डर 2. v is equal to integration y1 f of x upon w into dx, where w is nothing but this determinant. इसे हम बोलते हैं Wronskian एंड ये Wronskian कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये. What is y1? This is this function coming out of your complementary solution. y2 वहीं से आ रहा है एंड y1 dash and y2 dash are the derivatives of that two functions. So ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है. What is the value? y1 y2 dash minus y2 y1 dash. तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू आइदर इट इज अ कांस्टेंट और इट इज अ फंक्शन यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखनी है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट योर v एज वेल एज u. बहुत सिंपल है. y से फाइंड आउट करो, उससे ही आपका yp प्रिटेंड करो कि ये हमारा yp होगा एंड देन फाइंड आउट u एज वेल एज v बाय फाइंडिंग आउट द w. अ वेरी सिंपल टास्क. ठीक है, लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन द सेम. यहाँ पर मैं डिफरेंट प्रॉब्लम ले रही हूँ जो पीपीटी में शायद नहीं होगा. सो एमओवीपी के लिए हम डील कर रहे हैं. एंड नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू पुट अप ओवर हियर. दिस इज d2y by dx square plus 4y is equal to tan of 2x. ओके, जो एग्जाम्पल के लिए प्रॉब्लम दिया था वो भी हम ले सकते थे. yc, इसका बताओ yc क्या है मुझे, या फिर मैं इस प्रॉब्लम के लिए फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट अप कर देती हूँ. दिस इज d square plus 4 is equal to 0 implies d is equal to plus minus 2i and hence yc is c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x.
right? Put down this as equation 1. And now let yp, हम assume कर रहे हैं कि yp हमारा ये होगा u into cos of 2x plus v into sin of 2x. So हम cos of 2x को मान रहे हैं y1 and sin of 2x को मान रहे हैं y2. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब हमें करना क्या है, u एंड v को निकालना है. सो उससे पहले हम रॉन्सकियन निकाल लेते हैं. दिस इज डिटर्मिनेंट y1 y2 फर्स्ट रो के साथ एंड सेकंड रो है y1 डैश y2 डैश. पुट डाउन द डिटर्मिनेंट रोज हियर. y1 क्या है, cos of 2x, y2 क्या है, sin of 2x, y1 डैश क्या है, cos of 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin of 2x एंड y2 डैश क्या है, sin of 2x का डेरिवेटिव 2 cos of 2x. नाउ डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू. सो दिस इज 2 cos square 2x minus minus plus 2 sin square 2x. Am I correct? Yes, ma'am. यस. तो दो 2 बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 1. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो w आपको मिला कांस्टेंट. ये फंक्शन भी मिल सकता है. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द फॉर्मूला फॉर u. It's minus, or let me write down formula in this way so that you can understand. Minus y2 into right hand side function f of x divided by w into dx. Let us put up all the values. Minus y2 क्या है, sin of 2x. यही है ना y2? Check out once. Sin of 2x. f of x क्या है, tan of 2x divided by w क्या है, 2 into dx. ओके. सो माइनस हाफ हमने अब बाहर लिया. इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x, tan को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x. am I right? into dx. ओके. सो सॉल्व कैसे करना है इसे. दिस इज माइनस 1/2 into anybody, sin square 2x upon cos x, cos of 2x. ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है हमारे पास, उसको कैसे एड्रेस करेंगे. sin sin square 2 into cos sin x cos x लिख सकते हैं ना, sin 2x को. sin 2x का हाँ Sin सॉरी 2x इथे डिनोमिनेटर लाइक थे 2x ले आते हैं. हाँ, that we can write 2 sin of x into cos of x, that we can write. But what is use of that? Sin of 2x डिनोमिनेटर में है, उसे मुझे सिंप्लीफाई करना है. मैम 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिए तो हो जाएगा. 1 minus cos sin स्क्वायर x को 1 2x. माइनस cos स्क्वायर x. हमें पावर की टर्म सिंप्लीफाई करनी है, इतना याद रखना फॉर्मूलेज अप्लाई करते वक्त. What you are saying is that वन sin स्क्वायर 2x है हमारे पास, तो उसे लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos of 4x अपॉन 2 ऐसे. नहीं मैम, वन साइन स्क्वायर 2x है ना, तो फिर उसे 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिखना है और Okay. फिर उसे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके, मतलब न्यूमरेटर को स्प्लिट करके फिर 1 बाय cos 2x माइनस cos 2x ऐसा हो जाएगा ना. I'm sorry, एक मिनट, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x into dx, करेक्ट. ओके स्प्लिट करो फिर न्यूमरेटर को. ओके. yes, that's right. So 1 minus cos of x is sec of 2x and यहाँ पर इंटीग्रेशन cos of 2x ऐसे बचेगा. Is that right? हाँ यस मैम, यस. हाँ. Now tell me the integrations. मैम cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2.
1/2 log of sec 2x plus tan 2x. Yes, that's right. Got it, everyone? मॉड असताना म्हणतो Sorry? मॉड लॉग मध्ये Mod लिया. Problem. Result pattern is clear, everyone? In similar way, आपको v भी find out करना है. This is integration. Formula is एक minute. What is it? y1 into f of x divided by w into dx. So put down your y1 है cos of 2x, f of x है tan of 2x divided by w है 2. 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पर cos of 2x, tan के डिनोमिनेटर में cos of 2x होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin of 2x only into dx. इंटीग्रेशन ऑफ sin x. minus cos 2x by 2. करेक्ट. सो ये हो गया हमारा -1/4 cos of 2x. एंड अब हम हमारा yp लिख सकते हैं प्रॉपरली. yp इज u इंटू y1 प्लस v इंटू y2. सो दिस इज इक्वल टू u क्या आया है हमारा -1/4. यहाँ से 1/2 बाहर दिया तो करेक्ट. log ऑफ sec of 2x plus tan of 2x and plus आगे वाली टर्म क्या थी माइनस sin of 2x. This is multiplied by y1. y1 क्या है cos of 2x. करेक्ट. देन प्लस v क्या है आपका -1/4 इंटू cos of 2x एंड y2 क्या है sin of 2x. Now you can observe over here. यहाँ पर माइनस प्लस 1/4 sin of 2x into cos of 2x और यहाँ पर -1/4 into sin of 2x into cos of 2x. दोनों टर्म सिमिलर है आफ्टर अप्लाइंग दैट नेगेटिव साइन एंड -1/4 इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. हमारे पास बचेगा क्या -1/4 इंटू मैं cos of 2x पहले लिख देती हूँ इंटू ब्रैकेट log of sec of 2x प्लस tan of 2x. तो आपका पूरा ये जो yp है ना सिंप्लीफाई हो गया एंड यू गॉट दिस yp फाइनली. सो आपका y जो बनता है कंप्लीट सॉल्यूशन दिस इज yc प्लस yp एंड कैन बी रिटन एज c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x minus 1/4 cos of 2x into log of mod of sec of 2x plus tan of 2x. So ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन यूजिंग MOVP. अब MOVP कहाँ पर यूज करना है उसके लिए मैं थोड़े से हिंट्स देती हूँ. पहली हिंट क्या है कि आप LD ऑफ ऑर्डर 2 के लिए MOVP यूज कर सकते हो. दूसरा जहां पर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं राइट कॉम्प्लेक्स रूट्स टू ऑक्सिलरी इक्वेशन वहां पर अगर आपका राइट हैंड साइड फंक्शन अनयूजुअल है. अनयूजुअल मीन्स जो शॉर्टकट मेथड में लाई नहीं करता है. अब sec x वाली टर्म शॉर्टकट मेथड में नहीं आ रही है कहीं पर भी. tan x नहीं आ रहा है राइट. e raised to power x ये नहीं आ रहा है. I'll just write down here sec x tan x या फिर cosec वाली टर्म के लिए या cot वाली टर्म के लिए e raised to power x के लिए sin of e raised to power minus x के लिए राइट या फिर 1/1 plus e raised to power x के लिए. इस टाइप की सारी अनयूजुअल टर्म्स के लिए जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं वहां पर कंपलसरी ऑक्सिलरी ये MOVP यूज करने की कोशिश करो. जहां पर आपको रियल रूट्स मिलते हैं रियल रूट्स के लिए आपको करना क्या है आप दो चीजें यूज कर सकते हो. एक तो आप जनरल मेथड यूज कर सकते हो या फिर MOVP
भी यूज कर सकते हो. सो रियल रूट्स है ऑक्सिलरी इक्वेशन के, ऑर्डर 2 है एलडीई की, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. शॉर्टकट मेथड यूज करो, एमओएपी यूज करो, जनरल मेथड यूज करो, नो इश्यूज एट ऑल. अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स है तो जनरल मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत लेंदी है. आपको वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर से डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है, जिसके सिवा हमारा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं कंपाइल्ड फॉर्म में प्रॉपरली नहीं आता. अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो एमओवीपी यूज करना एलडी ऑफ ऑर्डर 2 के लिए प्रीफरेबल है, ऐसा मैं बोल रही हूँ. करना ही है ऐसा नहीं है, प्रीफरेबल है. अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो जीएम भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड भी कई सारी जगह पर यूज हो सकती है, जब आपके फंक्शंस बिसाइड्स दिस है, मीन्स यूजुअल वे में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस या हाइपरबोलिक साइन कॉस या एक्सपोनेंशियल की टर्म इन द न्यूमरेटर या पॉलिनोमियल है तो हम यूज कर सकते हैं. नो इश्यूज एट ऑल. समझ में आ गया पूरा सिनेरियो कि आपको कहाँ पर और कैसे करने हैं. दिस इज नॉट अ थंब रूल, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइंस टू यूज द method out of the 3 we discussed. Is that right? Am I clear, Yes. everyone? Okay. Yes. Yes. So अब और एक प्रॉब्लम के लिए ना MOVP ट्राई करो. मैं एक प्रॉब्लम देती हूँ आपको. This is the second problem of MOVP we are discussing. D square plus 1 operated on y is equal to x sin x. अब ये प्रॉब्लम आपका ना शॉर्टकट मेथड से हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से ये प्रॉब्लम हमारा केस 6 से सॉल्व नहीं होगा. केस 6 में अगर आप ये प्रॉब्लम अप्लाई करने जाओगे ना तो आपको वहां पर केस ऑफ फेल्योर मिलेगी जो हमने एड्रेस नहीं की है. रादर केस 6 में जहां पर केस ऑफ फेल्योर मिलती है, हमें वहां पर केस 6 अप्लाई करनी नहीं है, हमें दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि केस 6 केस ऑफ फेल्योर के केस में प्रोसीड कर ही नहीं सकते केस 6 में. सो वी कैन नॉट अप्लाई केस 6 हियर एट ऑल. तो मुझे ये केस जो अप्लाई करनी है ना वो x रेज़ टू पावर m इंटू साइन एक्स, एंड यहाँ पर डी मोवरेज थ्योरम इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करके फिर अप्लाई करनी होगी. सो दैट मेथड इज वेरी लेंथी. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट इट. लेकिन अगर यहाँ पर x इंटू साइन ऑफ 2x होता तो हम ये केस शॉर्टकट मेथड से आराम से अप्लाई कर पाते, क्योंकि वहां पर केस ऑफ फेलियर नहीं आती है. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये केस ऑर्डर यहाँ पर हम केस 6 अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पर 1 के अलावा a की कोई भी अदर वैल्यू है तो हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर पाएंगे. लेकिन a इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं होगी. तो यहाँ पर हम एमओवीपी इजिली कर सकते हैं. तो ये मैं 2 हटा देती हूँ यहाँ से, एंड दिस इज x एज इट इज. यस, तो यहाँ पर हम एमओवीपी अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज फर्स्ट केस, नॉट पॉसिबल. बी एमओवीपी हम यूज कर. ओके, सो यूज दैट. टेल मी वाई से क्या आता है. Everybody do this problem. With this problem, we are concluding with the theory part of first unit. हम C1 cos x plus sin x आएगा ना मैम. Sorry संजित, मला कळालं नाही काय बोललास. C1 plus C1 cos x plus C2 sin x ना. हाँ हाँ हो, yes. Cos x. Yes. YP. मैम sin x होगा ना मैम, 2x नहीं होगा, sin 2x नहीं होगा. साइन, हाँ हाँ साइन एक्स, गलती से लिखा मैंने साइन एक्स. Yes, solve that. Everyone solve that. Till I'll take your attendance.
sorry. ओके, यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूलाज बता के रखती हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ फॉर्मूले सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो वाई पी क्या आएगा, डब्ल्यू ये आपको ढूंढना है, देन यू ढूंढना है, दिस इज इंटीग्रेशन माइनस वाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है। एंड वी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाई वन एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। जमतंय सगळ्यांना? आय विश यू टू आस्क वन थिंग, फर्स्ट इयर मध्ये तुमचे जे रोल नंबर्स होते ना, सेम रोल नंबर्स तुमचे सेकंड इयर मध्ये पण आहेत का? मैम 46 नंतर सगळ्यांचे नंबर्स चेंज झाले. 46 थोडे नंतर थोडे- change झाले. Yes, ma'am. मैम मोस्टली वही हैं, बीच के बस स्टूडेंट जो जिनने लीव कर दिया था उनकी जगह पे बस नंबर एक रिप्लेस व्हायला. ओके ओके ओके. मॅम क्लास शफल नाही झालेला म्हणजे सेमच क्लास. अच्छा, सेमच Students क्लास आहेत, ना? फक्त रोल नंबर वर खाली same वरतीच झाले म्हणजे. ओके ओके, फाईन फाईन, येस. सो इट्स प्रिटी इझी फॉर यू. जनरली नाही तर काय करतात, फर्स्ट इयरमधनं सेकंड इयरला गेले की सगळ्या स्टुडंटला क्लब करतात नावं आणि काय म्हणतात ते अल्फाबेटिकली सॉर्ट करून मग डिस्ट्रीब्यूट करतात डिव्हिजन वाईज. मैम हमारा पहले से ही सॉर्टेड था, फर्स्ट ईयर में सॉर्ट कर लिया था। अच्छा ओके, देन इट्स प्रिटी गुड. तो क्लास चेंज नहीं हो रही है आपकी, स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहे. दैट्स नाइस. Under autonomy now, it's your first batch and variety of things we are proposing under autonomy. Now you are dealing with your core branch, so you are having pretty big opportunities to deal with the recent technologies, have interaction with the outside world, internships and all. So carefully relate everything, though right now we are working from home, you are studying from home. Carefully deal with all of these things because experience matters much. After 4 years of span, when you will approach to the any company, that internship experience will be considered. So try to grab best opportunity for the internship, whatever the options we are available in the campus or whatever interaction for yourself you are having with outside world. So try to communicate with your teachers time to time for the same. Okay, done with anything for this problem? Can I write YP? Which lecture do you have next? It's already 10:25. I will. Yes, sir. DSA मॅम. Okay. Fine. So, shall we discuss this problem in tude sessions or in next lecture?
Yes, ma'am. Okay, complete that by that time. We'll just cross-check the answers of this problem in next session. So here we are concluding with the theory part. One part is remaining still from unit 1. That is applications of LD in computer gaming. We'll check out with that problem, whether with that bit, whether we can take it right now or after certain time. So right now we are closing with this. Thank you everyone. And for B1 and B2 batch, we'll meet in tube session at 12:20. Have a good day everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Thank you, Veda.